Hello guys, I welcome you all to the day 96 of our series, and today we will be covering a new set of linking words, and this will be our last session on linking words. So now let's move forward. But before we begin, this was your yesterday's task which you were supposed to perform. So पहले एक बार इसको देख लेते हैं. I have read the manifests and they all say the same thing. Okay, तो यहाँ पे कोई एक वर्ड था जो इनकरेक्ट था इन ईच सेंटेंस एंड यू हैड टू क्रॉस इट आउट एंड राइट द करेक्ट वर्ड एट द एंड ऑफ दैट सेंटेंस. सो हियर द इनकरेक्ट वर्ड इज मैनिफेस्ट. मैनिफेस्ट का मीनिंग तो होता है प्रकट होना. मैनिफेस्ट प्रकट होना, जो कि यहाँ पे आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है कंप्लीटली. तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड हो जाएगा मैनिफेस्टो का प्लूरल हो जाता है. ई एस लगाइए, आप चाहे सिर्फ एस लगा के छोड़ दीजिए. सो इट विल बी मैनिफेस्टोज. मैनिफेस्टोज. Coming to the next one, they should give us a say to what happens in our city. They should give us a say in. Give us a say in what happens in our city. Next is, do you think the councillors will make our ideas seriously? Will take our ideas seriously? To take something seriously, ये होती है correct phrase. My sister has done a lot of work for the volunteer sector. Okay, volunteer is used specifically for a person. और यहाँ पे सेक्टर की बात हो रही है, so we are going to use here the word voluntary. T-A-R-Y, voluntary. Next is, she spoke movingly on behalf for all of us. It's not behalf for, it is on behalf of all of us. Or you can also use this word on the behest of. On the behest of all of us. Next is, they should stand out for people who don't have a say. Stand up for people. Okay, stand out from a crowd या फिर stand out from a group का मीनिंग हो जाता है कि आप उस ग्रुप में या उस भीड़ में सबसे अलग दिखो, सबसे हटके कुछ करते हो, तब हम इस फ्रेज को यूज करते हैं stand out. लेकिन यहाँ पे क्योंकि सपोर्ट करना था तो वहाँ पे stand up यूज होगा, ना कि stand out. नेक्स्ट पे आते हैं. There are no local dash in my town who speak on my behalf. On my behalf. Next है, there are no local councillors. Coullors, councillors in my town. ये हो जाएगा. Okay, next is, how much do local dash help dash organizations such as help the aged? So how much do local councils help charity organizations such as help the aged? The aged कह सकते हो, या फिर इसका सिनोनिम आप ये भी नोट डाउन कर लेना, the elderly, यानी कि जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनके लिए हम ये वर्ड्स यूज करते हैं, या तो the elderly या फिर the aged. नेक्स्ट में आते हैं, I don't really feel I dash a say in local politics. I have a say. I have a say means I have any opinion. Local politicians should dash up for people. Okay, should stand up. Should stand up, or you can also use should stick up. Stick. Okay. So both of these phrases mean the same. Stand up or stick up for people and dash the ideas seriously, and take their ideas seriously. Moving to the next one, do you think you can get a dash from the council to improve your home? You can get a grant. You can get a funding amount. There are thousands of British citizens living in other parts of Europe. तो हम आज के हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं, और आज का हमारा सेशन रहेगा पुटिंग फॉरवर्ड योर पॉइंट. आप अपना पॉइंट सामने किस तरह से रख सकते हो, कौन कौन सी फ्रेजेस आप यूज कर सकते हो, उनसे आप अपना सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हो. तो सबसे पहले तो ये है
इन माई ओपिनियन, और यहाँ पे देखिए क्योंकि ऑनेस्ट को मैंने ब्रैकेट में लिखा है, दैट मीन्स आप इसको यूज कर भी सकते हो और अगर नहीं करोगे तो भी गलत नहीं होगा। तो अब यहाँ देखिए, इन माई ऑनेस्ट ओपिनियन या फिर माई ऑनेस्ट ओपिनियन इज दैट, दोनों को यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स में आते हैं इन माई ओपिनियन और इन माई ऑनेस्ट ओपिनियन इट वॉज अ क्लियर कट केस ऑफ डर्टी पॉलिटिक्स हिडन अंडर द स्किन ऑफ कल्चरल एंड कम्युनल शॉविनिज्म। अब यहाँ पे देखिए दो हमने वर्ड्स नए सीखे हैं यहाँ पे, अंडर द स्किन ऑफ यानी कि किसी चीज के नीचे छुपा हुआ होना, लेयर में छुपा हुआ होना जो हमें सामने से दिखाई नहीं दे रहा लेकिन एक्चुअल में उसका हिडन मीनिंग वही है। सो अंडर द स्किन ऑफ, वहां पे हम ये यूज करते हैं। एक और हमने वर्ड यहाँ पे देखा है शॉविनिज्म। शॉविनिज्म यानी कि किसी भी पर्टिकुलर, चाहे तो सेक्स हो सकता है मेल शॉविनिज्म यानी कि मेल के प्रति, या फिर हो सकता है फीमेल शॉविनिज्म फीमेल के प्रति, सो सेक्स भी हो सकता है। इसके अलावा कोई रिलीजन हो सकता है, कोई कम्युनिटी हो सकती है, कोई जगह भी हो सकती है, या फिर कोई पर्टिकुलर ग्रुप भी हो सकता है कि जिसके प्रति आप बहुत ज्यादा झुकाव रखते हो, इंक्लिनेशन रखते हो, यानी कि उनके प्रिंसिपल्स को आप बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो, या फिर ये मान के चलिए कि आप उनकी चीज़ों से, उनके फेथ, उनके बिलीफ सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, तो वहाँ पे ये वर्ड निकल के आता है, दैट इज शॉविनिज्म। आपने बहुत बार मूवीज़ में ये ज़रूर सुना होगा दैट यू आर सच अ मेल शॉविनिस्ट, यानी कि तुम्हें ये लगता है कि सिर्फ मेल अच्छे होते हैं, वही सब काम कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा मेल शॉविनिस्ट। So, which was made to happen just before the elections. Okay, हम complete sentence में आते हैं। अब ये किसी पर्सन का ओपिनियन था और वो ये कहना चाह रहा था कि मेरे ओपिनियन में, कि मुझे ऐसा लगता है ये डर्टी पॉलिटिक्स का क्लियर कट केस था जहां पे पॉलिटिक्स तो हिडन रह गई और क्या चीजें सामने आ गई, कल्चरल एंड कम्युनल, ये एंगल मिल गया इस पूरे केस को, और जो इलेक्शन से पहले जानबूझ के करवाया गया था। नेक्स्ट में आते हैं, इन माई ओपिनियन इट इज बेस्ट टू कंप्लाई विद द सजेशंस ऑफ आवर बॉस इन दिस टफ टाइम, और इन दिस हार्ड टाइम भी आप यूज कर सकते थे, इन दिस हार्ड टाइम, उसका मीनिंग भी वही हो जाता है, टफ टाइम। सो अब देखिए मेरा ओपिनियन ये है, इट इज बेस्ट टू कंप्लाई विद, अभी यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब नहीं आपको सीखने को मिलेगी, टू कंप्लाई विद यानी कि पालन करना, अनुपालन करना किसी का। सो टू stick with the suggestion of our boss, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट में आते हैं, ओके यहाँ पे एक और वर्ड आप यूज कर सकते थे, टू emulate, टू EMULATE, emulate का मीनिंग हो जाएगा अनुसरण करना किसी का, कोई पर्सन कुछ कर रहा है आप उसको फॉलो कर रहे हो वहां पे। सो इट इज बेस्ट टू emulate the suggestion of, ये भी हो सकता था। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, माई ऑनेस्ट ओपिनियन इज दैट दिस ड्रेस इज ओवरप्राइज्ड। किसी भी वर्ड के पहले अगर हम ओवर ये वर्ड लगा देते, दैट मीन्स वो नॉर्मल या यूजुअल जो चीज होती है, जो क्वांटिटी में रहती है उससे कहीं ज्यादा है, ओवरप्राइज्ड मीन्स काफी ज्यादा है जो प्राइस नॉर्मली होना चाहिए इसका, एंड you can get a better price at much economical cost। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, that is economical। देखिए आप यहाँ पे cheap ये भी यूज कर सकते थे, लेकिन देखिए इसका मीनिंग होता तो वही है सस्ता, लेकिन इसका एक और मीनिंग भी हो जाता है चीप का कि घटिया। तो अगर आप इस वर्ड को यहाँ पे यूज करते एट मच चीप कॉस्ट या फिर एट चीप, ये भी इतना लिख के भी आप छोड़ सकते थे, काम चल जाता, तो वहां पे क्या होता कि ये थोड़ा सा नेगेटिव साउंड करता है ये वर्ड। तो बजाय कि चीप के बेस्ट होगा आप ये वर्ड यूज कीजिए इकोनॉमिकल। ध्यान रखना इट्स नॉट इकोनॉमिक, इट्स इकोनॉमिकल। इकोनॉमिक जहां पे भी वर्ड यूज होगा अगर हम AL नहीं यहाँ यूज करेंगे, दैट मीन्स वो हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है, और यहाँ पे इकोनॉमी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है सस्ते की, तो इस वजह से इकोनॉमिकल ये आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट में आते हैं, however in my opinion the main responsibility of the media is to tell us the truth, कि मेरा ओपिनियन तो ये है कि जो मीडिया की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमें सच्चाई बताने की है। नेक्स्ट इज my honest opinion is that if he cares more about your training than lining his pocket, again one more idiom is here, lining somebody's pocket means to earn
the profit, to earn the profit, then it is a sign of a good teacher कि देखो मेरे ओपिनियन में तो ये है कि अगर वो तुम्हारी ट्रेनिंग के बारे में ज़्यादा ध्यान दे रहा है बजाय कि अपना प्रॉफिट देखने के, सो दिस इज अ साइन कि वो बहुत ही अच्छा टीचर है. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, और ये फ्रेज है हमारी एज फार एज आई एम कंसर्न्ड. इससे भी ये बोल के भी आप अपना पॉइंट सामने रख सकते हो. सो इट इज़ डेफिनेटली अ गुड एक्सचेंज डील एज फार एज आई एम कंसर्न. कि मेरा पॉइंट क्या था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, मेरा पर्सपेक्टिव क्या था कि ये जो डील है वो काफ़ी अच्छी एक्सचेंज डील थी. सो मैं इस तरह से मैंने इसको बोल दिया दैट एज फार एज आई एम कंसर्न इट इज़ डेफिनेटली अ गुड एक्सचेंज डील. Next is I don't think he wants to go anywhere. As far as I am concerned, he is happy here. यहाँ पे फिर से as far as I am concerned means that you are putting your point forward. Next is as far as I am concerned, everyone should be given an equal opportunity. कि जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा सोचना है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. और अब यहाँ पे देखिए, जो पर्सन सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी में बिलीव करता है, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे पर्सन को कहा जाता है फेमिनिस्ट. हो सकता है आपको कुछ मिसकंसेप्शन हो इस वर्ड को लेके, मैं आप वो सारे आपके मिसकंसेप्शंस दूर कर देना चाहती हूँ. फेमिनिस्ट का मीनिंग हो जाता है वो पर्सन, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, वो पर्सन जो सबको इक्वल लेके चलना चाह रहा हो, यानी कि जो ये चाहता हो कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले. ये नहीं कि सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट हो, नहीं, ये बिल्कुल नहीं इसका मीनिंग होता. अगर कोई मेल है और अगर उसे ऑप्रेस किया जा रहा है, उसे सप्रेस किया जा रहा है और वहाँ पे भी अगर वो पर्सन अपनी आवाज़ उठा रहा है, दैट मीन्स ही इज़ अ फेमिनिस्ट. तो यहाँ पे फेमी को आप फीमेल से कनेक्ट मत करना. देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. Mankind. What is the meaning of this word mankind? Means humanity. Humanity, मानव जाति, है ना, यही होता है. लेकिन यहाँ पे mankind, man देख के क्या आपने कभी ये सोचा है कि यहाँ पे तो man है, that means ये तो सिर्फ मेल के लिए होगा, यहाँ पे तो फीमेल का कोई रोल नहीं है? नहीं ना, हम ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि हमें पता है mankind यानी कि पूरी ह्यूमैनिटी की, पूरी मानव जाति की बात हो रही है वहाँ पे. एक और आपने इडियम ये ज़रूर सुना होगा, that man is mortal. Man is mortal. Mortal यानी नश्वर, जो मर जाता है, जो अमर नहीं होता. सो मैन इज मॉर्टल. और यहाँ पे जो मैन है, यहाँ पे मैन से मीनिंग है कंप्लीट मैनकाइंड की बात हो रही है, कंप्लीट ह्यूमैनिटी की यहाँ पे बात हो रही है. तो यहाँ पे भी आपने ये तो नहीं सोचा होगा कि मैन इज मॉर्टल, सो इन दैट केस वुमेन इज इमॉर्टल, कि जो वुमेन है वो तो कभी नहीं मरेगी, ऐसा हमने नहीं सोचा. तो हम इस वर्ड के साथ में इस तरह से क्यों सोच रहे हैं, जबकि फेमिनिस्ट ये भी इसी तरह से है. कंफ्यूज नहीं होना, इसका मीनिंग भी वही होता है, पर्सन हु बिलीव्स इन हैविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी. और इसका ऑपोजिट हमने अभी थोड़ी देर पहले वर्ड किया था, शॉविनिज्म. CHAUVINIST. उस पर्सन को हम बोलते हैं शॉविनिस्ट. अब ये हो जाएगा किसी स्पेसिफिक जेंडर, स्पेसिफिक कम्युनिटी, स्पेसिफिक सोसाइटी, वहाँ के लिए अपने थॉट्स रखता हो. सो अभी नेक्स्ट में मूव करते हैं. As far as I am concerned, it were the officials who incited the fight. कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जहाँ तक मुझे लगता है जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने इस फाइट को इंसाइट किया था. इंसाइट का मीनिंग क्या हो जाता है? भड़काना. कि उन्होंने इस चीज़ को और भी ज़्यादा भड़काया था. और इसके सिनोनिम्स हम देख लेते हैं इंसाइट के, आप ज़रूर नोट डाउन करना. फर्स्ट तो हो जाएगा प्रोवोक. प्रोवोक का मीनिंग भी वही हो जाता है, भड़काना, उकसाना. इसके अलावा इग्नाइट. इग्नाइट ये भी हो सकता है. इसके अलावा एग्रोवेट, VATE. एग्रोवेट का भी वही मीनिंग हो जाता है, किसी को भड़काना, किसी को उकसाना. सो नेक्स्ट में मूव करते हैं. व्हाट इज द मोस्ट सीरियस चैलेंज वी आर फेसिंग नाउ. कि कौन सा ऐसा सीरियस चैलेंज है जिसे हम अभी फेस कर रहे हैं. एज फार एज आई एम कंसर्न्ड
इट इज़ मैन मेड क्लाइमेट चेंज। सो आपको अगर कोई भी बात कहनी है, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है किसी भी पर्सन को या किसी भी ग्रुप को, इन दैट केस फील फ्री टू यूज दिस फ्रेज दैट एज फार एज आई एम कंसर्न्ड दिस शुड बी लाइक दिस। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, देर इज नो रीजन टू वेट। वेट करने का तो कोई अब सवाल ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं बनता। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड लेट्स मूव अहेड, कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए अभी। नेक्स्ट फ्रेज पे आते हैं, ये हो सकती है इन माई व्यू, आप ये भी बोल सकते हो, या फिर फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी आप बोल सकते हो। एग्जाम्पल्स पे आते हैं, द सिचुएशन फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इज स्टिल नॉट सेटिस्फैक्ट्री, कि आपको कुछ भी लग सकता है लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अभी भी ये जो सिचुएशन है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। नेक्स्ट इज ही लिसन्ड पेशेंटली टू व्हाट वी ऑल हैड टू से बिफोर पुटिंग अक्रॉस एन अल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, कि उसने शांति से पेशेंटली हम सबको सुना, हम सबके पॉइंट्स सुने, बिफोर पुटिंग अक्रॉस एन अल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। अल्टरनेटिव यानी कि अदर पॉइंट ऑफ व्यू, अदर चॉइस या अदर ऑप्शन, वो हमारे सामने रखने से पहले उसने हमारे सबके पॉइंट्स सुने। नेक्स्ट है शी ब्रॉट हिम टू हर पॉइंट ऑफ व्यू। ब्रॉट समवन टू देयर पॉइंट ऑफ व्यू का मीनिंग हो जाता है कि उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें उसे दिखाई, यानी कि यहाँ पे जो शी है इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, इसने उससे इसको हिम को चीजें दिखाई, यानी कि उसे ये समझाया कि मेरी तरह अगेन, यानी कि उसे ये समझाया कि अगर तुम मेरे शूज में आके देखोगे तो चीजें इस तरह से तुम्हें दिखाई देंगी। नेक्स्ट इज he'll come round to my point of view given a bit of time, कि अगर थोड़ा सा टाइम दे दिया जाएगा तो हाँ वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझेगा। come round to gain consciousness means to gain कॉन्शियसनेस, यानी कि उसको इतनी अकल आ जाएगी कि वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझे, बस उसे थोड़ा सा तुम टाइम दो। नेक्स्ट इज फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू आई डू नॉट सी हाउ दीज चेंजेस विल बी बेनिफिशियल टू द कंपनी, कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है, मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी चेंज जो है वो बेनिफिशियल होगा कंपनी को। नेक्स्ट में आते हैं, द बुक टेल्स द स्टोरी ऑफ अ मर्डर इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द चीफ सस्पेक्ट। चीफ सस्पेक्ट यानी कि जिसपे शक किया जा रहा है कि हाँ अभी ये एक्यूज्ड हो सकता है। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट फ्रेज इज व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव, ये भी आप इतना बोल सकते हो, और यू कैन ऑल्सो से दैट व्हाट आई ट्रूली फील, दोनों का सेम मीनिंग होगा, व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव और व्हाट आई ट्रूली फील। एग्जाम्पल्स में आते हैं, व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव इज दैट दिस इज द टाइम टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ इक्वालिटी, कि अभी यही सही टाइम है इक्वालिटी का जो चैलेंज है उसे एक्नॉलेज करने का, उसे एड्रेस करने का। नेक्स्ट इज व्हाट आई बिलीव इज दैट वी ऑल गेट आवर शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक एवरीवन एल्स। ओके, टू गेट आवर शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स, इसका मीनिंग क्या है कि हमें भी अपने हिस्से की प्रॉब्लम्स वैसे ही मिली है जैसे बाकी सबको मिली है। नेक्स्ट इज व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव इज दैट एवरी चाइल्ड इज लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मीनिंग हो जाता है लॉफुल, या फिर अगर ये कहा जाए, हिंदी में कहा जाए तो जायज इन द आईज ऑफ गॉड। नेक्स्ट इज व्हाट आई फील इज दैट वी आर फाइटिंग अ वॉर ऑफ गुड वर्सेस इविल। व्हाट आई ट्रूली फील, आप ये भी बोल सकते हो, व्हाट आई स्ट्रांगली फील, ये भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट में आते हैं अभी, फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, इसको देख लेते हैं अभी। फ्रॉम माई परस्पेक्टिव दिस लुक्स लाइक अ वेरी गुड डील, यानी कि अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जाना जाए, मेरे परस्पेक्टिव से, मेरे नजरिए से देखा जाए तो ये तो मुझे बहुत अच्छी डील लग रही है। परस्पेक्टिव यानी कि नजरिया। नेक्स्ट है, फ्रॉम माई परस्पेक्टिव इट अपीयर्स दैट यू आर गोइंग टू हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी टू गेट दिस मैटर सेटल्ड, कि जहां से अभी मैं देख पा रही हूँ मुझे तो ये लगता है कि तुम्हें काफी सारे रुपए, काफी सारी मनी, काफी सारी अमाउंट पे करनी पड़ेगी इस मैटर को सुलझाने के लिए। नेक्स्ट इज फ्रॉम माई परस्पेक्टिव आई सी माई सेल्फ एज अ हेल्पफुल एंड अ सपोर्टिव पार्टनर, कि जहां से मैं खुद को देख सकती हूँ, फिर मेरा खुद को लेके क्या नजरिया है कि मैं बहुत ही हेल्पफुल और एक सपोर्टिव पार्टनर हूँ। नेक्स्ट इज फ्रॉम माई परस्पेक्टिव दिस एक्शन डज नॉट रिक्वायर फर्दर एक्सप्लेनेशन, कि जो भी तुमने अभी काम किया है वो फर्दर एक्सप्लेनेशन
की ज़रूरत नहीं है उसे, यानी कि अब तुम कोई क्लैरिटी मत देना, मैं कुछ भी नहीं समझूंगा इस पॉइंट पे क्योंकि मैंने अपना ओपिनियन बना लिया है। नेक्स्ट इज फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव द पुलिस शॉट इन लेजिटिमेट डिफेंस। लेजिटिमेट अगेन लॉफुल, यानी कि जो कानून की नजरों में सही है वो। सो शॉट, दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब शूट। सो ऑब्वियसली दिस इज अ सेंटेंस ऑफ पास्ट। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, मेरे नजरिए से देखा जाए तो जो पुलिस है उसने जो शूटिंग की वहां पे, तो वो लेजिटिमेट थी, अपने डिफेंस में उन्होंने ये किया। सो आवर नेक्स्ट फ्रेज इज पर्सनली आई थिंक। अगर आप आई थिंक नहीं यूज करते तो भी करेक्ट होगा, आप इसको यूज कर भी सकते हो। नेक्स्ट अब एग्जाम्पल में आते हैं। ऑल द कार्स आर ऑटोमेटिक्स विच आई नो annoys a lot of gamers, यानी जितनी भी कार्स हैं वो सारे ऑटोमेटिक हैं जो काफ़ी सारे गेमर्स को अनॉय कर देती हैं, यानी कि इरिटेट कर देती हैं। बट पर्सनली, अब मैं यहाँ पे इसके बाद में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ दैट पर्सनली आई एम ऑल राइट विद दैट, या फिर पर्सनली आई थिंक दैट आई एम ऑल राइट विद दैट, कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। नेक्स्ट इज पर्सनली आई थिंक इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। और वेस्ट ऑफ टाइम, इसके अलावा किसी भी चीज़ को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल ही बेकार आइडिया है, सो इट इज़ अ रॉटन आइडिया। नेक्स्ट इज पर्सनली आई फाउंड सम पार्ट्स ऑफ द बुक अ लिटिल टू टेक्निकल टू फॉलो, यानी कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मुझे इस बुक के कुछ पार्ट्स ऐसे लगे जो काफ़ी टेक्निकल थे। नेक्स्ट इज पर्सनली आई थिंक ही शुड गेट सम प्रोफेशनल हेल्प, कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है, मेरा पर्सपेक्टिव अगर जानो, मेरा नज़रिया ये है कि उसे प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है अभी। नेक्स्ट इज पर्सनली आई थिंक द शो इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट सक्सेस, कि मेरा ये मानना है, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा ये ओपिनियन है कि जो ये शो है वो काफ़ी बड़ा हिट होने वाला है। द शो इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट हिट और अ ग्रेट सक्सेस। नेक्स्ट इज टू माई वे ऑफ थिंकिंग, यानी कि जैसे मैं सोच रही हूँ अगर तुम उससे रिलेट कर पाओ या तुम भी अगर वैसे सोचो तो तुम समझ पाओगे। सो बेसिकली एक और मैनर है जिसमें आप अपना आइडिया, अपना पॉइंट सामने रख सकते हो। सो एग्जांपल्स में आते हैं। वेल टू माय वे ऑफ थिंकिंग दैट्स नॉट फेयर, द सुपर रिच शुड पे एट अ मच हायर रेट देन रेस्ट ऑफ अस, कि मेरे अकॉर्डिंग तो ये जो अभी सिस्टम चल रहा है वो फेयर नहीं है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो इस पे ये है, और जो सुपर रिच हैं उनको काफ़ी ज़्यादा टैक्स पे करना चाहिए बजाय कि हमारे। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है पहले एक, वुडंट यू लाइक टू मेक मोर मनी, क्या तुम और भी ज़्यादा मनी कमाना नहीं चाहते? सो इस पे आंसर आ रहा है ऑफ कोर्स, बट टू माई वे ऑफ थिंकिंग, लेकिन अगर मेरा नज़रिया देखा जाए तो स्पेंडिंग टाइम विद द किड्स इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज मेकिंग मनी। ये ऑब्वियसली किसी पेरेंट से क्वेश्चन किया गया है तो उसने ये जो उसका ऑफर था उसको रिजेक्ट कर दिया है, और उसने अपने पॉइंट में ये कहा है कि बच्चों के साथ में अगर टाइम स्पेंड किया जाए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ मेकिंग मनी। टू माई वे ऑफ थिंकिंग, this is the most important decision we have to make right now. नेक्स्ट इज टू माई वे ऑफ थिंकिंग, कि ये बहुत ही बड़े लेवल पे वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा, सो इट वुड जस्ट बी अ मैसिव वेस्ट ऑफ मनी। नेक्स्ट इज टू माई वे ऑफ थिंकिंग दे आर मेकिंग अ हिमालयन ब्लंडर। अब यहाँ पे इस वर्ड को देखते हैं, ब्लंडर, इसका मीनिंग हो जाता है बिग मिस्टेक, बिग मिस्टेक। तो अब यहाँ से आपको यह अंदाजा हो गया होगा, ब्लंडर ये दो वर्ड से मिलके बना है बिग मिस्टेक, तो कभी भी बिग ब्लंडर ये मत यूज करना, क्योंकि बिग ये वर्ड तो पहले से इसमें है ना, इंक्लूडेड है ब्लंडर में, हमेशा ही आप यूज करना या तो ब्लंडर या फिर बिग मिस्टेक, ह्यूज मिस्टेक, कभी भी बिग ब्लंडर या ह्यूज ब्लंडर नहीं यूज किया जाएगा। हाँ, ये जो है हिमालयन ब्लंडर, ये अपने आप में कंप्लीट एक मुहावरा है, इस वजह से वो करेक्ट है। नेक्स्ट में आते हैं, इट सीम्स दैट और इट सीम्स टू मी दैट, कि मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है, या फिर इट अपियर्स टू मी दैट, आप इस तरह से भी अपना पॉइंट सामने रख सकते हो कि मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है, ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम्पल्स में आते हैं, इट सीम्स टू मी दैट व्हाट ले बिहाइंड द क्लैशेस वाज द लैक ऑफ यूनानिमिटी ओवर द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, कि मुझे ऐसा लगता है
ये जो क्लैश हुए हैं, ये जो झगड़े हुए हैं आपस में, इनके पीछे क्या रीजन है? द लैक ऑफ यूनानिमिटी। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है यूनानिमिटी, यानी कि साथ मिल के काम करने को हम ये बोलते हैं यूनानिमिटी, यानी एकजुटता, सॉलिडारिटी, ये हम बोल सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट है, इट सीम्स टू मी दैट द हायर यू राइज, जितना ऊंचा तुम उठोगे, द लेस टाइम यू हैव टू एक्चुअली डू योर जॉब, यानी कि जितने बड़ी तुम रैंक पे चले जाते हो उतना ही तुम्हें कम काम करना पड़ता है। ये मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है। इट अपियर्स टू मी दैट सम पीपल स्टिल बिलीव इन सॉर्सरी। सॉर्सरी क्या होता है? जादूगरी, हैरी पॉटर वर्ल्ड basically. So it appears to me that some people still believe in sorcery. वो आज भी believe करते हैं इन सब में, sorcery में and black magic. Next है, it seems that the so-called new theory is likely to sink into oblivion. Sink यानी कि डूब जाना, डूब जाना। और oblivion ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, ये है, इसका मीनिंग हो जाता है गुमनामी, यानी कि गुमनामी में डूब जाएगी। ये जो नई थियरी है ये भी मुझे ऐसा लगता है, सिंक इनटू ऑब्लिवियन। और नेक्स्ट है, इट सीम्स टू मी दैट द बैड वेदर ऑफ लास्ट विंटर विल रिपीट इटसेल्फ दिस ईयर, यानी कि पिछले साल जो बुरा वेदर था इस बार भी सर्दियों में सेम वही जो बुरा वेदर है वो रिपीट होगा। और यहाँ पे हमने अभी ये वर्ड यूज किया था यूनानिमिटी, इसके हम बाकी और सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। तो एक हो जाएगा एग्रीमेंट, ऑब्वियसली जो मैं आपको बता चुकी हूं पहले। इसके अलावा आप यूज कर सकते हो अकॉर्ड, ACCORD, अकॉर्ड, बहुत ही अच्छा वर्ड है, काफी फॉर्मल वर्ड है ये। और इसी के साथ साथ कॉनकॉर्ड, CONCORD, कॉनकॉर्ड, सेम मीनिंग है इसका भी। इसके अलावा यूनियन, यूनिटी, वो मैं यहाँ पे कवर नहीं करूंगी क्योंकि वो बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं। इनके अलावा हार्मनी, हार्मनी, आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हो, ये भी काफी अच्छा वर्ड है। यूनिसन, UNISON, यूनिसन, ये भी वही मीनिंग हो जाता है, यूनानिमिटी वाला ही। इसके अलावा कंसेंसस, कंसेंसस, ये काफी बार न्यूज़पेपर में रिपीट होता है ये वर्ड। अगर आप रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो, इन दैट केस यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस वर्ड। नेक्स्ट में आते हैं अभी, ये हमारा आज का वोकैबुलरी सेक्शन, और वोकैबुलरी सेक्शन में हमारा आज का टॉपिक रहेगा पर्टिकुलरली द रोल ऑफ द मेयर। बहुत सारी ऐसी टर्म इसमें होंगी जो आप पहले से जानते हो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो यही है मेयर, यानी कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन या जो टॉप मोस्ट ऑफिशियल होता है, वो चूजन भी हो सकता है, इलेक्टेड भी हो सकता है, दोनों ही केसेस पॉसिबल हैं। मैक्सिमम केसेस में आप देखोगे इलेक्टेड ही आपको मिलेगा, वो हो जाएगा मेयर। नेक्स्ट इज एलिजिबल। अब एलिजिबल आपने सुना होगा ना किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सो एलिजिबल यानी कि योग्य होना, योग्य होना। तो एलिजिबिलिटी, अच्छा देखिए, एलिजिबल ये तो हो गई हमारी वर्ब, यानी योग्य होना। वर्ब भी और एडजेक्टिव भी हो सकता है ये, लेकिन अगर हम नाउन की बात करें तो अब योग्य होना, इसका नाउन क्या हो जाएगा? एलिजिबिलिटी, यानी योग्यता। सो यहाँ पे TY लग जाएगा, एलिजिबिलिटी, योग्यता ये है, एलिजिबिलिटी ये है। सो इसमें हो जाएगा कि रूल्स के अकॉर्डिंग या लॉज के अकॉर्डिंग आप कोई भी चीज रिसीव करने के हकदार हो। नेक्स्ट इज हाई प्रोफाइल। हाई प्रोफाइल हम उसको बोलते हैं कि जो लोगों का ध्यान बहुत जल्दी से आकर्षित करता है। फॉर एग्जाम्पल हाई प्रोफाइल जॉब की लोग इजीली नोटिस करते हैं उसको। हाई प्रोफाइल केस, जैसे आजकल मीडिया में सिर्फ एक ही केस है जो हाई प्रोफाइल बना हुआ है, यानी कि लोग क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा अटेंशन देते हैं। नेक्स्ट इज स्पोक्स पर्सन। स्पोक्स पर्सन वो पर्सन होता है जो बोलता है किसी भी पार्टी के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, यानी उनकी जगह पे। नेक्स्ट इज प्रोमोट समथिंग। अब प्रोमोट करना किसी को, यानी कि हेल्प करना किसी की डेवलपमेंट में या किसी काम के होने में, अगर आप हेल्प कर रहे हो, इन दैट केस यू आर प्रोमोटिंग दैट थिंग। नेक्स्ट इज बजट। अब बजट देखिए, एक अमाउंट ऑफ मनी है जो
कोई भी पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्टेट या कंट्री कितने ही बड़े लेवल पे हो सकता है, या फिर आपके घर से स्टार्ट हो गया, यानी इतने छोटे लेवल से स्टार्ट हो के बड़े लेवल तक जा सकता है। तो ये एक ऐसी अमाउंट होती है, अमाउंट ऑफ मनी, जो तय की जाती है कि हम आने वाले टाइम में इतना स्पेंड करेंगे किसी पर्टिकुलर चीज पे। वो हो जाता है हमारा बजट। सेट अ बजट मीन्स डिसाइड अ बजट। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक। बहुत ही ध्यानपूर्वक जो प्लानिंग की जाती है कोई स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए, तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं स्ट्रेटेजिक। और केयरफुली प्लान्ड, इसके लिए आप ये भी, इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हो मेटिकुलसली। मेटिकुलसली इसका मीनिंग भी वही हो जाता है, केयरफुली, बहुत ध्यानपूर्वक कोई काम किया गया हो, मेटिकुलसली प्लान्ड। नेक्स्ट में आते हैं सिटी वाइड। जहां पे भी वाइड लग जाए दैट मीन्स अक्रॉस द। तो अभी यहाँ पे सिटी की बात है, सो अक्रॉस द होल सिटी, यानी कि पूरी सिटी में फैला हुआ होना। इसी तरह से नेशन वाइड, यानी कि या फिर कंट्री वाइड, यानी कि पूरे नेशन में या पूरी कंट्री में फैला हुआ होना। वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में फैला हुआ होना, यूनिवर्सल होना। नेक्स्ट इज पुलिसिंग। आपने आज तक शायद यही जाना है कि जो पुलिस ये वर्ड है ये सिर्फ नाउन की तरह हम यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली नाउन की तरह तो यूज होता ही है, इसके अलावा इसे हम वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। और अगर हम इसको वर्ब की तरह यूज करते हैं तो उस टाइम पे इसका मीनिंग हो जाएगा कि एक्टिविटी ऑफ कीपिंग ऑर्डर इन अ प्लेस यूजिंग द पुलिस। सो जहां पे पुलिस को एज अ वर्ब यूज किया जाता है वहां पे उसका मीनिंग हो जाता है कि ये जो नाउन वाली जो पुलिस है, इनको यूज करके उस पर्टिकुलर एरिया में प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन की जाए। नेक्स्ट है एजेंसी। अब एजेंसी कोई भी हो सकती है, बिजनेस भी या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी हो सकता है, जो कोई भी पर्टिकुलर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हर उस ग्रुप को हम एजेंसी बोलते हैं। एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी या फिर ट्रैवल एजेंसी। नेक्स्ट इज नेटवर्क। अब नेटवर्क यहाँ पे देखिए, अ सिस्टम ऑफ रोड्स, लाइंस, वायर्स। किसी का भी एक सिस्टम हो सकता है जहाँ पे चीजें आपस में कनेक्टेड हों, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हों, तो वो चीज हो जाता है नेटवर्क यानी जाल। नेक्स्ट इज चेयर अ मीटिंग। और यहाँ पे ध्यान रखना है, जो चेयर है ये वर्ब वाला चेयर है, ना कि नाउन वाला। यहाँ पे फिर से मैं आपको डिफरेंस क्लियर कर देती हूँ। देखिए, चेयर नाउन वाला तो आपने सुना होगा, यानी कुर्सी, लेकिन चेयर अगर एज अ वर्ब यूज होगा तो आप देखिए वर्ब का मीनिंग क्या होता है। वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड्स, कोई ना कोई काम हो रहा है वहां पे, किसी काम का होना। सो यहाँ पे नाउन में सिर्फ इसका मीनिंग था कुर्सी, और यहाँ पे चेयर अगर वर्ब की तरह यूज करेंगे इसका मीनिंग हो जाएगा कुर्सी पे बैठना। यानी बेसिकली जो भी पावर्स हैं उनका हकदार होना, वो उस कुर्सी पे बैठने से जो पावर आपको मिलती है वो सभी ग्रहण करना। तो ये प्रोसीजर हो जाएगा हमारा जब हम चेयर को यूज करेंगे एज अ वर्ब। सेम केस है पुलिस वाला। सो बी इन चार्ज ऑफ समथिंग। अभी नेक्स्ट में मूव करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा आज के इस लेक्चर में, क्योंकि देखिए हमने ये सुना है स्पोक्स पर्सन, हमने ये भी सुना है चेयर पर्सन, हम ये भी सुनते आए हैं स्पोक्समैन या फिर चेयरमैन। लेकिन अगर उस पोस्ट पे, उस पर्टिकुलर पोस्ट पे अगर कोई वुमेन होती है, उस केस में भी हम गलती क्या करते हैं, स्पोक्समैन, चेयरमैन, वो वहां की चेयरमैन है, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्पोक्समैन या चेयरमैन ये सिर्फ और सिर्फ मैन के लिए यूज होते हैं, वहां पे वुमेन को आप नहीं उसे स्पेसिफाई कर सकते। और देखिए, अगर न्यूट्रल आपको रहना है तो आप न्यूट्रल पर्सन बोलिए। जो पर्सन है वो अपने आप में एक न्यूट्रल वर्ड है, लेकिन अगर आप मैन बोल रहे हो दैट मीन्स कि आप जेंडर वहां पे स्पेसिफाई कर रहे हो। और ऐसे केस में अगर उस पोस्ट पे कोई वुमेन है तो आप उसको स्पोक्समैन नहीं स्पोक्स वुमेन बोलोगे, और चेयरमैन नहीं चेयर वुमेन बोलोगे। इसी तरह से मेयर नहीं मेयरेस हो जाएगी वो। सो नेक्स्ट में अभी मूव करते हैं हमारे टास्क वाले पार्ट पे। ये आपको करना है, फिल करने हैं आपको यहाँ पे वर्ड्स। और इनके अलावा ये मैंने अपना ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल यहाँ पे क्रिएट किया है। अगर आप रेगुलरली मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर रहे हो तो आपको प्रीवियस लेक्चर्स के जितने भी पीडीएफ थे वो सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग।